ہمیں آواز دیتا ہے، پرندوں کو اڑنے کے لیے پرواز دیتا ہے، شاگردوں پر بھی کھول اپنے راز دیتا ہے، چڑیا سے مرا باز دیتا ہے، 4 دن کا مردہ بھی قبر سے نکل آئے جب سن یسوع کی آواز لیتا ہے۔ وہ جو حاکم الحاکمین، وہ جو سلطان السلاطین، وہ جو عارف العارفین، وہ جو انبیاء المرسلین، وہ جو قدوس قدیم شاہ عظیم رب العالمین یہوہ کریم پاک خدا ہے، وہ جو حل مشکلات ہے، قدرت معجزات ہے، مان کے کائنات ہے، بناتا دن اور رات ہے، اسی کے دم سے ہماری بات ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے۔ وہ یہوہ قدوس عظیم پاک خدا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ عجیب اس کی ہر ایک بات ہے۔ وہ جو سچائی میں کھڑا ہے اور ازل سے دوا کیا ہوا بڑا ہے، جس نے ہر ایک دکھ ہماری خاطر جڑا ہے، جو ہماری خاطر صلیب پر چڑھا ہے، ہمارے گناہوں کی خاطر مرا ہے، وہی فرماتا ہے جہاں 2 یا 3 اس کے نام میں اکٹھے ہو، وہ اپنے لوگوں کے درمیان آموجود کھڑا ہے، اور جو تمہارے درمیان آموجود کھڑا ہے اسی نے تو اپنے پاک روح قدس سے تمہیں بھرا ہے۔ وہ جو نور کو بشار کی طرح اوڑھتا ہے، وہ جو طوفانوں کے رخوں کو موڑتا ہے، وہ جو ٹوٹی امیدوں کو جوڑتا ہے، وہ جو شیطانی زنجیروں کو توڑتا ہے، وہ جو ابلیس جس کا نام سن کر دوڑتا ہے، وہ جو پہاڑوں کو پلوں میں تولتا ہے، وہ جو گرجتے بادل کی طرح بولتا ہے، وہ جو ایلیا پر آسمان کو کھولتا ہے، وہ عجیب مشیر خدا قادر عطیہ کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ جو خداوند نوح کا خدا، نوح کا خدا، ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کا خدا ہے، وہ جو موسیٰ، ہارون، یشوع کا خدا ہے، وہ جو سمسون، سیمون، داؤد، سلیمان کا خدا ہے، وہ جو ایلیا، الیشا، یسایہ، یرمیا، حزقیل، دانیل، ہوسیہ، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونہ، میکا، نحوم، حبقوق، صفنیہ، حزقیل، زکریا، ملاکی کا خدا ہے، وہ جو تمام تر پرانے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے نبیوں کا خدا ہے، وہ جو متی، مرکز، لوکا، یوحنا، پترس رسول، پالوس رسول، شیلاس رسول، حنفی کا، برطلمائی کا، یہودا کا، یعقوب کا، تیسی کا، توما کا، فلپس کا، اندریاس کا، یوحنا عارف کا خدا ہے، وہ جو تمام تر نئے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے رسولوں کا خدا ہے، وہ جو آسمان، سورج، چاند، ستاروں، فضاؤں، ہواؤں، کہکشاؤں، پہاڑوں، چٹانوں، چوٹیوں، چشموں، دریاؤں، سمندروں، زمین کی مٹی سے آدم اور آدم کی پسلی سے ہوا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو چلانے والا خدا ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ یسوع کے گرد گھومتی ہے۔ یسوع آسمان، زمین، نبیوں، رسولوں، فرشتوں سمیت تمام مخلوقات کا خدا موجود ہے۔ یسوع وہ ہے جو آدم سے لے کر یوم عدالت تک ہر ایک برگزیدہ اور ایماندار جس کا منتظر ہے اور رہے گا۔ ابراہم بھی اس کے دنوں کو دیکھنے کا منتظر تھا، اس سے پہلے کہ ابراہم تھا یسوع ہے۔ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ یسوع جلال، حشمت، حکمت، قدرت، طاقت، تمجید، تعریف، پرستش، بندگی، عبادت، بزرگی اور سجدوں کے لائق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں جو یسوع کی قدرت، اختیار اور عظمت والی جلال کو توڑ سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں جو یسوع کی محبت، رحم، کرم، ترس اور فضل کی حدوں کو ناپ سکے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو یسوع کے دل، سوچوں، ارادوں، خیالوں اور کو پرکھ سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یسوع پر گناہ صبر کر سکے۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ گناہ گاروں کا نجات دہندہ ہے، وہ نصابی ہے، اس کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ وہ کمزوروں کی طاقت، وہ غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کے حق کا محافظ ہے، وہ تو آزمائش میں پھنسے ہوئے لوگوں کا متحد مددگار ہے۔ وہ تو آگ کی بھٹی میں اعزازے کی صورت کی مانند اتر جاتا اور بچا لیتا ہے۔ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا، لنگڑوں کو چلنا دیتا، ان کے پیروں کو بولنے اور سننے کی طاقت دیتا، مفلوجوں کو بحال کرتا، کوڑیوں کو پاک کرتا، مردوں کو زندہ کرتا۔ وہ کہے تو پانی میں بن جاتا ہے، اس کی ایک چلکی سے سمندر ساکن ہو جاتے ہیں۔ وہ حکم صادر کرتے تو درخت اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔
को निस्तर नबूद करके उसके सर को कुचला और कुचलने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद वो हुक्म सादर करता है, वो फरमाता है, वो कहता है कि देख मैं मर गया था और मैं जिंदा हूँ और अपने बाबू करके जिंदा रहूंगा, क्योंकि मौत और आने वाली कुंजियां मेरे पास है। मेरे बंद की हुए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि वो फरमाता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के वास्ते देने के लिए अजर मेरे पास है। अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ, राह को जिंदगी में हूँ, पेड़ों का अच्छा चल रहा मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी में हूँ, अंगूर का हकीकी तत्व मैं हूँ, जिंदगी की रोटी में हूँ, जिंदगी का पानी में हूँ, हिकमत का चश्मा में हूँ, नजात का दरवाजा में हूँ, दाऊद की असल और नस्ल में हूँ, सुबह का रोशन सितारा मैं हूँ। और जो मूसा से झाड़ी में कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, उसी के जिंदा बाबरकत जलाली लसानी लाफानी ला तब्दील ला मुतबद्दल फुरकबद्दल सबसे अजीम सबसे आला सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत यीशु नाम में आप सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा मोहब्बत भरा हकीकत भरा खुलूस भरा सलाम कबूल हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए यीशु के नाम के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कोई बता सकता है आज कितनी मतलब कि अपनी खानदानी जो बात है वो कितनी? छठी। जोरदार तालियां बजाएंगे फैसला नहीं। आज एक तो हम खानदानी तौर पर यहाँ पर इकट्ठे हैं, कलीसियाई तौर पर इकट्ठे हैं, और खानदान एक कलीसिया है और कलीसिया एक खानदान है। हालेलुया। खानदान एक कलीसिया है और कलीसिया एक खानदान है। खुदा से खिदमत, खुदा से खानदान और खुदा से जब हम मेरे जीजो जुड़ते हैं तो हम खानदानी तौर पर जब खिदमत करते हैं तो खुदा हमें रूहानी तौर पर खेत से फिर खुशियां देता है। हालेलुया। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमारे बुजुर्ग की बरसी भी है और उसके साथ हम खानदानी तौर पर यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो आए बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम आज देखते हैं एक छोटी सी वर्ष जिसके अंदर ये कायनात और कायनात का जरा जरा बसा हुआ है। मैं ईमान रखता हूँ कि आज शाम आप कलाम अक़दस के वसीला से बरकत पाए। हालेलुया। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा ये कि ये कलाम इमरान मंजूर सुनाने को है, नो 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 नो, बल्कि इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इमरान मंजूर जिस हस्ती का कलाम सुनाने को है, ये हस्ती वो हस्ती है, ये कलाम वो कलाम है जो कमजोर हड्डियों को भी जोरावर करता है। तो जीजो आए बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम देखेंगे। मैं अक्सर बात एक शेर बोलता हूँ, कोई इंसान को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक रूह कुद्दस ना सिखाए। कोई इंसान आप भी इंसान, मैं भी इंसान। और ये एक शेर मैंने लिखा है कि कोई इंसान को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक रूह कुद्दस ना सिखाए। बात तो दिल को वही अच्छी लगती है जो कलाम मुकद्दस के अंदर से है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर से, कलाम मुकद्दस के अंदर से हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत। एक आयत है, वर्ड्स है। अगर कोई बुलंद आवाज से पढ़ना चाहता है तो कलीसिया में वो पढ़ सकता है, उसे इजाजत है। एक आयत है पैदाइश की किताब 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। आमेन आमेन। थैंक यू। कलाम अक़दस के पढ़े सुने समझो उसके कबूल किया जाने पर खुदा की खास बरकत। आमीन। खुदा का शुक्र। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर ये पढ़ा, और तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, ए आदम तू कहाँ है? आदम वेयर आर यू? खुदा कॉलिंग कर रहा है, पुकार रहा है, आवाज़ दे रहा है। खुदा वो खुदा जो ये कायनात और कायनात के जर्रे
इंसान, बशर, हैवानात, जिन्नात, हवानात, नबातात, हशरात, जमादात से वाकिफ है। आज वो खुदा बाइबल मुकद्दस के अंदर से पुकार कर आदम को बुला रहा है। उस आदम को, जिस आदम को खुदा ने खुद अपने हाथों से क्रिएट किया, खुद अपने हाथों से बनाया, और वो खुदा आज पुकारता है और कहता है, ऐ आदम तू कहाँ है? ऐ आदम तू कहाँ है? अब वो खुदा, जिस खुदा ने कायनात के एक एक जर्रे को जैसे हुक्म दिया वैसे बन गया। खुदा ने कहा आसमान बन जाए, आसमान बन गए। खुदा ने कहा सितारे बन जाए, सितारे, सूरज, चांद, हर एक चीज फलकुल फलाक बन गए। खुदा ने जमीन से हुक्म किया कि ऐ जमीन तू अपने अंदर बीजदार फल और पौधे और सब्जियां उगा, और जमीन ने नाफरमानी नहीं की, खुदा का हुक्म माना और अपने अंदर जड़ रखने वाले पौधे जड़ी बूटियां पैदा की। खुदा ने समंदर से कहा ऐ समंदर तू अपने अंदर के रहने वाले जानदार पैदा कर। पानी के अंदर मछलियां पैदा हो गई, पानी के अंदर रहने वाले जानदार पैदा हो गए। हर एक बशर, हर एक चीज जो खुदा का हुक्म मानती है, सब कुछ खुदा ने बनाया। और खुदा ने जब अपनी रूह को पानी की सतह पर चलते देखा, और खुदा ने अपने सूरत, अपनी शक्ति के ऊपर खुदा ने सोचा कि क्यों ना एक आदम बनाया जाए, एक इंसान बनाया जाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि खुदा ने फिर जमीन की मट्टी ली, उसको खोदा, उसको साना, और उसके बाद एक ढांचा तैयार किया, और उस ढांचे को तैयार करने के बाद खुदा ने उसके अंदर जिंदगी का दम फूंका, उसको फूंक मारी, उसको अपनी सांसें दी, अपनी जिंदगी उसको दी, और वो आदम जीती जान हो गया। वो आदम जो पहले भूत था, वो आदम जो पहले खाम का पुतला था, वो आदम चलना फिरना शुरू हो गया, वो आदम हिलना झुलना शुरू हो गया, और चलते फिरते हिलते झुलते वो आदम अचानक से गायब हो जाता है। खुदा कहता है ऐ आदम तू कहाँ है? अब खुदा यहाँ पर उस आदम को ढूंढ रहा है जिस आदम को खुदा ने खुद बनाया, और भागे आदम की निगहबानी बागबानी करने के लिए उसको रखा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि आदम से नाफरमानी हुई। खुदा ने जब मना किया कि ये फल नहीं खाना, उसके बावजूद खाया गया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदा ने आदम को और हवा को क्या किया? बाकी आदम से बाहर निकाल दिया। अब ये खुदा उस आदम को तलाश कर रहा है, उसको आवाज़ें दे रहा है कि ऐ आदम तू कहाँ है? खुदा ने जिसको बड़ी मोहब्बत के साथ बनाया, बड़े चाव के साथ बनाया, बड़ी लगन के साथ बनाया, खुदा ने अपने हाथ की कारागरी से, अपनी जबान के हुक्म से नहीं बल्कि अपने हाथ की कारागरी से खुदा ने आदम को तैयार किया। और अब वो आदम भटक गया। इसका मतलब है कि ऐ आदम तू कहाँ है? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि आदम मिल नहीं रहा, आदम खो चुका है, आदम गुम हो चुका है। खुदा आदम को पुकार रहा है और खुदा कहता है ऐ आदम तू कहाँ है? इसका मतलब ये है कि जब इंसान अपने राह रास्त को छोड़कर, अपनी दुष्ट राह को छोड़कर भटक जाता है तो वो गुम हो जाता है, वो खो जाता है, वो मिलता नहीं। खुदा उसको ढूंढता है और खुदा फरमाता है कि ऐ आदम तू कहाँ है? आदम को खुदा ने भागे आदम से बाहर निकाल दिया तो क्या खुदा खुश हुआ? नहीं। बहते ही जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि खुदा जिसको खुद अपने हाथों से बना रहा है, अगर उसको भागे आदम से बाहर निकालेगा तो क्या वो खुश होगा? नो 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 नो। खुदा खुश नहीं हुआ, खुदा उदास हुआ। खुदा
बात के लिए कि उसने अपने हाथ की कारीगरी को बागे अदम के अंदर से बाहर कर दिया है। और खुदा कहता है कि ऐ आदम तू कहाँ है? अब आदम बागे अदम से बाहर निकाल दिया गया और हवा को भी बाहर निकाल दिया गया। अब जब उनको बाहर निकाल दिया गया तो आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, अगर हम में से किसी का कोई बच्चा या कोई भाई गुम हो जाए तो क्या हम उसे ढूंढेंगे कि नहीं? ढूंढेंगे। हम क्या करेंगे? हम थाने जाएंगे, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे। अगर ना मिल रहा हम अपने जिलो कारब को फोन करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि फलां शख्स आपके पास है, फलां भाई आपके घर तो नहीं आया, जी नहीं इधर भी नहीं है। हम ढूंढेंगे, हम उसके यारों दोस्तों से पूछेंगे कि जी फलां कहाँ है, फलां कहाँ है। लेकिन अजीजों, जब आदम को बागे अदम से बाहर निकाल दिया गया तो फिर उसको किसने ढूंढा? खुदा। खुदा कहता है ऐ आदम तू कहाँ है? अब आदम के पीछे जाने वाली ना उसकी माँ ना उसका बाप जो जाकर आदम को ढूंढे और उसको बागे अदम के अंदर वापस लेकर आए, ना आदम की बहन ना आदम का भाई जो आदम को बागे अदम के वापस अंदर ले आए, ना आदम की कोई बेटी ना आदम का कोई बेटा जो बागे अदम से बाहर जो निकाला गया उसको वापस बागे अदम के अंदर लेकर आए। तो खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने दोस्तों का चुनाव किया। खुदा ने मुकद्दस मूसा नबी को भेजा, जाओ आदम को लेकर आओ, आदम खो चुका है, आदम को ढूंढो कि आदम कहाँ है, ऐ आदम तू कहाँ है? खुदा ने अब्राहम को भेजा, जाओ आदम को लेकर आओ कि आदम कहाँ है, ऐ आदम तू कहाँ है? खुदा ने दानियल को भेजा, जाओ आदम को लेकर आओ, आदम कहाँ है? खुदा ने यशायाह को भेजा, जाओ मेरे प्यारे नबियों, जाओ मेरे प्यारे बंदो, जाओ ढूंढो आदम कहाँ है, आदम को लेकर आओ। खुदा ने यिर्मयाह को भेजा, यिर्मयाह तू भी जा और जाकर आदम को लेकर आ। खुदा ने अपने बहुत सारे नबियों को, अपने पैगंबरों को भेजा कि जाओ और लेकर आओ मेरे आदम को, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। वो मिल नहीं रहा। खुदा ने अपने नबी भेजे, अपने पैगंबर भेजे और उनको खुदा ने हुक्म दिया कि जाओ और आदम को बागे अदम के अंदर वापस लेकर आओ। जो जो नबी आए वो आकर आदम को रास्त पर लाने की कोशिश करते रहे। वो आदम को कहते रहे, ऐ आदम तू भटक चुका है, ऐ आदम तू गुम हो चुका है, ऐ आदम तू खो चुका है, वापिस आ, क्योंकि तेरा रास्ता ये नहीं बल्कि तेरा रास्ता नजात की तरफ है, तेरा रास्ता बागे अदम की तरफ है। अदम का मतलब है, अदम का लफ्ज है, ये हम इंग्लिश में से कहते हैं ईडन, और ईडन कहते हैं जन्नत को, फरदौस को। यानी कि आदम जो था बागे अदम से जो निकाला गया, इसका मतलब वो जन्नत से निकाला गया। वो बागे अदम से निकाला नहीं गया था खाली, वो जन्नत से, फरदौस से निकाला गया। तो खुदा ने अपने नबियों की ड्यूटी लगाई, लेकिन आदम फिर भी वापस नहीं गया। सुने, गौर करें, खुदा ने नबियों की ड्यूटी लगाई कि आदम को वापस लेकर आए, लेकिन आदम फिर भी वापस नहीं गया। बड़े बड़े नबी आए, पैगंबर आए, आकर आदम को राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदम वापस नहीं जा। आदम खो चुका है। और खुदा क्या कहता है, ऐ आदम तू कहाँ है? अब अजीजों, अगर हम अपने किसी बच्चे की शादी करें, एग्जाम्पल कोई हमारा हमसाया या हमारा यार दोस्त या हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कोई रिश्तेदार हमसे नाराज हो जाए तो होता क्या है? असी भेजिए ना अपने किसी धीर नूं कि जाओ यार तुसी शादी का उन्होंने सदा दे आओ, ते वो बड़ा की कहते हैं, जेडे नाराज होए होंदे ने, वो की कहते हैं, तू आ गया सदा लैके मैं आप नहीं आ सकता।
बात को समझ रहे हैं ना? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ तो खुदा ने नबियों को भेजा आदम तो वापस आया आदम की कहता है आप नहीं आ सकता जगह उन्होंने वापस घर में जाना है तो उनके आप आवे आप आकर मुझे वापस लेकर ताड़े गैर नहीं में जाना खुदा ने नबियों को भेजा कि जाओ जाकर आदम को वापस लेकर आओ और खुदा ने नबियों की ड्यूटियां लगाई पैगंबरों की ड्यूटियां लगाई मगर आदम वापस नहीं गया आदम राय रास्ते पर
कर रोए जमीन पर अपने आप को इंसानी सूरत में लेकर आ गया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदावंद यीशु मसीह फिर रोए जमीन पर। जो सारा निजाम चल रहा थे, नबियों को गल नहीं बनी, फिर खुदा ने रूप धारिया ते आप जमीन उत्ते आदम ने आना। उन्हें कहा ठीक है आदमा, जे उंज नहीं तू आंदा ते चल फिर मैं तेनू तेरी जेरी तोड़ देना, मैं आप ही आ जाना तेनू लैन वास्ते। फिर खुदावंद यीशु मसीह खुद रोए जमीन के उत्ते आ गए आदम ने। अब सुने जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चंद लफ्ज़ बड़े खास हैं। ऐ आदम ना बोलो, फिर बैठे रहो ना बोलो। ऐ आदम, ये जाना जो फिर सारे बोलना पड़ेगा। ऐ आदम तू कहाँ है? अब खुदावंद यीशु मसीह नासरी रोए जमीन पर आ गए हैं आदम को लेने के लिए, और वो क्या फरमाते हैं कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ। अब खुदा ने जो आदम बनाया, आदम अन्ना थी नहीं। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, खुदा फरमाता है आदम तू कहाँ है? नबी आए आदम को लेने के लिए, लेकिन लेकर नहीं जा सके। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए आदम को वापस लेकर जाने के लिए, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो आदम को देखते हैं, ऐ आदम तू कहाँ है? और आदम बैठा भीख मांग रहा है, लेकिन वो क्या है? अंधा है। उसने कहा ऐ आदम तू कहाँ है? तो भागते अदन के अंदर आदम ने कहा ऐ खुदा, मैंने तेरी आवाज सुनी, मैं डरा और मैं छुपा, क्योंकि मैं क्या था? क्योंकि मैं नंगा था। और वहां पर खुदा उसको पुकारता है, कहता है ऐ आदम तू कहाँ है? जब खुदावंद यीशु मसीह रोए जमीन पर आए तो उन्होंने देखा कि आदम जो है वो भीख मांग रहा है। यीशु ने कहा ऐ आदम तू कहाँ है? तो आदम ने कहा मैं अंधा हो चुका हूँ, मेरी आंखें नहीं है। तो यीशु ने कहा ऐ आदम, मैंने तुझे ऐसा नहीं बनाया था, मैंने तो तुझे आंखें दी थी, ये तेरी आंखें अंधी हो चुकी है, कोई बात नहीं, मैं तेरा खुदा, उस वक्त भी मैंने तेरी आंखें बनाई थी, अब भी मैं तेरी आंखें बनाता हूँ। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर थूका, थूकने के बाद मिट्टी निशानी और गोलियां बनाकर उसकी आंखों में लगा दी, और लगाने के बाद बोला शैलो, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ, जा वहां से धो ले। और जब उसने जाकर वहां से धोया और ग्राम अक़दस के अंदर लिखा वो अंधा बीना हो गया, उसको आंखें मिल गई, आदम को आंखें मिल गई। आदम तू कहाँ है? और कलाम बयान करता है कि ऐसे गुजरते गुजरते फिर आका मुनजी यीशु मसीह नासरी जब गुजरे तो फिर रास्ते में एक और भिखारी बैठा है, वो भीख मांग रहा है। अब उस आदम का क्या हाल है? उस आदम की टांगे नहीं, वो आदम लंगड़ा है। और कलाम अक़दस के अंदर लिखा खुदा फरमाता है ऐ आदम तू कहाँ है? बाकी अदन के अंदर से आवाज आती है मैं नंगा हूँ। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पुकारते हैं और कहते हैं ऐ आदम तू कहाँ है? आदम कहता है ऐ यीशु, ऐ आका, मैं नंगा हो चुका हूँ, मैं चल नहीं पाता, मेरी टांगे देख, मेरी टांगों का शैतान ने क्या हाल कर दिया। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम की टांगे बिल्कुल ठीक ठाक थी, आदम चलता फिरता था। यहाँ पर आदम लंगड़ा लूला हुआ पड़ा है, तो खुदा ने यीशु मसीह ने उसे फूल शिफा दी और वो लंगड़ा चलना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा और यीशु मसीह नासरी देख रहे हैं कि आदम की कंडीशन जो है बिगड़ चुकी है, आदम की हालत बिगड़ चुकी है। जो आदम भागे अदन के अंदर से बाहर निकाला गया था, ये आदम वैसा आदम नहीं रहा। आगे खुदा में यीशु मसीह जाते हैं तो वहां पर लिखा एक कोढ़ से बड़ा शख्स वहां पर आ जाता है, वो कोढ़ी हुआ होता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि खुदा में यीशु मसीह ने उसको आवाज दी है, उसको पुकारते हैं, उसको देखते हैं। जब वो कोई सामने आ जाता है तो यीशु कहते हैं आदम तू कहाँ है? तो
फिर अल्फो शिफा पा गया। हालेलुया। आदम दुरुस्त हो गया, आदम का कोड भी चला गया, आदम को आंखें भी मिल गई, आदम को टांगे भी मिल गई। और भाई को मुकद्दस के अंदर लिखा खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे। एक काफिला आया, उस काफिले के अंदर वहां पर एक ऐसा शख्स था जिसके अंदर गूंगी और बहरी बदरू थी। आदम गूंगा भी हो चुका था और बहरा भी हो चुका था, उसको पता नहीं चलता था मैंने बोलना क्या और सुनना क्या। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदावंद यीशु मसीह पुकारते हैं और कहते हैं आदम तो कहाँ है? आदम कैसे बोले? आदम तो गूंगा हो चुका है, आदम तो बहरा हो चुका है, ना सुनता है ना बोलता है। आदम उसको मेरे बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उस शख्स के अंदर से बदरू को निकाला और वो फौरन फीलफुल बोलना शुरू हो गया, वो सुनना शुरू हो गया। हालेलुया। अब ये खुदावंद यीशु मसीह समझने बात आदम को तैयार कर रहे हैं। नबी आए, नबिया को आदम तैयार नहीं होया, खुदा ने आदम को तैयार किया तो बाहर कर दिता गया ना तो शैतान ने भी हालत में कर दी। शैतान ने अखा भी कर दी, लंगड़ा कर दिता, जबान भी खोली, कान भी खोले, खोड़ी कर दिता। इतना ही नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा नैन शहर की बेवा, नैन शहर की बेवा का जनाजा जा रहा होता है, बेटे का जनाजा जा रहा होता है। खुदा मेरे चीजों को कुदरत वाला खुदा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदावंद यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे और सामने से नैन शहर की बेवा के बेटे का जनाजा आ रहा था। अब खुदा पुकारता है आदम तू कहाँ है? आदम कितों बोले आदम पे मुर्दा प्यार है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा उन्होंने जब जनाजा नीचे उतारा तो आका जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उस मुर्दे की तरफ हाथ बढ़ाया और वो मुर्दा उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह आदम को जिंदगी दे। आदम अखा मिल गया, लता मिल गया, कान मिल गया, जुबान मिल गई, कोड़ भी चला गया, जिंदगी भी आ गई, लेकिन अभी भी आदम वापस नहीं जा सकता। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि फैट से फिर फैट ही है। आदम को कितना कढ़िया से? आदम को कहाँ से निकाला? बागी कितना कहा से? बागी कितना कहा से? हाँ जी, आदम का वो बनाया किने से कहा? खुदा ने। हालेलुया। अब देखिए आदम को लेके कितने चला गया यीशु मसीह। देखें आकर आदम को कहां से वापस लेकर जा रहा है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा आकर जी ये मैसेज बहुत लंबा है। वो भाई पास्टर फैसल साहब बैठे साथ में अच्छा मेरे को पता है कि मैसेज बहुत बड़ा है, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसलिए ताकि आप समझ लें मुख्तसर सी बात है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदावंद यीशु मसीह जब रोए जमीन पर आए आकर फिर आपके और मेरे लिए उन्होंने दुख से कोड़े खाए, शरीर से और मौत बल्कि सलीबी मौत द्वारा की। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदावंद यीशु मसीह नासरी की मौत डेथ हो गई, उनको दफन कर दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह जब दफन कर दिए गए तो उनकी रूह पताल में गई। पताल में जाकर कैदी रूहों को छुड़ाया। फाइट ते आएगा मजेदार तारीख का एक कार आगे मारे शैतान बड़ा बागे अटल के अंदर खुदा उसका आगे अंदर जरूरत नहीं थी फ्लैट खुदा दे बागे अंदर ने अंदर जाके आदम बाहर कराया। फिर खुदा यीशु मसीह भी पताल से गया जिसे शैतान ने अपना कार बनाया। हालेलुया। फिर फैट ते मजेदार के अंदर उसका होका दिया मारे। हालेलुया। और क्या आया जे तू मेरे आदम नु मेरे घरों कढ़ के ले है ना ते मैं तो तेरे घरों वापस लेके आवांगी ते तेनू उत्थे जाके शिकस्त देगा तेरी ना ते मैं बारी की तरह मिला नहीं कितना कार के पता शेर है और फिर उत्थे जाके ओदे कार दे विच जाके पताल जो था इब्लीस ने अपने कब्जे में कर रखा था। पताल इब्लीस का अपना घर था, उसके अंदर
बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा खुदावंद यीशु मसीह रात्रि जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो 3 दिन वो नीचे पाताल में उतरे और जाकर वहां पर कैदी लोगों को छुड़ाया और वहां पर से आदम की रूह को लेकर वापस आए और आदम जो है वो जीती जान हुआ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कब्रों के मुंह खुल गए, कब्रें तिलक गई, कब्रों के मुंह खुल गए और बहुत से मुकद्दसीन जी उठे। हालेलुया। आदम घर जाने के लिए तैयार हो चुका है। आदम पाताल से भी बाहर निकल चुका है, लेकिन एक काम बाकी था। अभी इधर बेटी ने एक आयत पढ़ी है, तो आज ही मेरे साथ फरदौस। मैंने पहले बताया अदन का मतलब फरदौस, जन्नत। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। और ये बात किसको कही? ये बात किसको कही थी? नहीं, आदम को कही थी, बिल्कुल। जो स्लीपर कौन थे? डाकू। अब वो डाकू जो था स्लीपर, वो भी आदम ही थी, वो भी तो आदम ने बागे आदम के अंदर गलती की और बाहर आके सजा भुगती, लेकिन तब तक वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता था जब तक अपने गुनाह का इकरार ना करे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, एक ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचाओ और हमें भी बचा। और दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं। ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी। हालेलुया। ये आदम था। आदम ने कहा कि हम अपनी गलती की सजा पा रहे हैं। वो गलती जो बागे अदन के अंदर की थी, उस गलती की सजा ऐ खुदा मैं पा रहा हूँ। खुदा कहता है कि तू आदम तू कहा है, तो आदम कहता है कि मैंने गलती की, मैंने गुनाह किया, मैंने उसकी सजा पाई। तो यीशु ने जब सुना कि आदम ठीक हो चुका है, आदम की आंखें आ गई, आदम की टांगें हंसों मिल गई, आदम पूरा तैयार हो गया। अब सिर्फ आदम का कौल बाकी था, आदम का तौबा का इकरार बाकी था। आदम ने सलीब पर कहा ऐ खुदा हम अपने किए की सजा पा रहे हैं। तो यीशु ने कहा आज तो मेरे साथ फरदौस होगा। हालेलुया। आदम अपने काम चलिए। हालेलुया। आखिरी शेर बोलकर कलाम को वाइंड अप करूंगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये हकीकत बात है कि जब हम अपने आप को तौबा नहीं करते, इकरार नहीं करते, तो हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया आ गया हूँ, आदम मैं तुझे वापस लेने के लिए आ गया हूँ, आ घर वापस ले जा। शायर क्या कहता है? शायर कहता है एक गल तो बिगड़ी गल तेरी, एक गल तो बिगड़ी गल तेरी, नाफरमानी की थी एक गल तो बिगड़ी गल तेरी, तेनू मिलिया देश निकाला है, हुण वापस लैन लई आया, अज आपे कर वाला है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह खुद आदम को वापस लेकर आने और आदम, आप भी आदम, मैं भी आदम। हो सकता है आज भी हम रूहानी तौर पर अंधे हो, रूहानी तौर पर लंगड़े हो, रूहानी तौर पर गूंगे हो, रूहानी तौर पर बहरे हो। हमें जरूरत है खुदावंद यीशु मसीह का पल्ला पकड़ने की, ताकि हम वापस बागे अदन के अंदर जा सके। हालेलुया। ऐ आदम तू कहाँ है? आदम अब कहाँ है?